خبرنامہ میں آپ تمام کا خیر مقدم ہے۔ خبروں کے آغاز پر پیش ہے سرخیاں۔ حیدرآباد پہنچا کوویشیلڈ اور کو ویکسین ٹیکہ، پہلے مرحلے میں 6,50,000 تقسیم کی جائے گی خوراک۔ کووڈ کیسوں کی تعداد میں کمی، مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن کا بیان، آنے والے دنوں میں مزید 4 ویکسین آنے کی دلائی یقین دہانی۔ نئے ہندوستان کی تعمیر کے لیے آگے آنے نوجوانوں سے وزیر اعظم کی اپیل، نئی تعلیمی پالیسی نوجوانوں کی امنگ میں ثابت ہوگی مددگار۔ اور کسانوں کے مسائل کا جائزہ لینے سپریم کورٹ نے تشکیل دی کمیٹی، رپورٹ آنے تک زرعی قوانین پر عدالت عظمیٰ نے لگائی روک۔ سرخیوں کے بعد بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ کورونا ویکسین تلنگانہ ریاست کو پہنچ گئی ہے۔ ویکسین کے لیے ریاست کی عوام ایک طویل عرصے سے منتظر تھے۔ بتایا جا رہا ہے کہ پونے شہر سے خصوصی تیاری کے ذریعے کوویشیلڈ ویکسین شمس آباد ایئرپورٹ پہنچ چکی اور 6,50,000 خوراک پر مشتمل کووڈ کے یہ ٹیکے دستیاب ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ ویکسین کو محفوظ رکھنے کے لیے کوٹھی میں واقع محکمہ ہیلتھ کے دفتر میں 40 کیوبک میٹرز ویکسین کولر کا قیام عمل میں لایا گیا ہے۔ بتایا جا رہا ہے کہ کوٹھی سے مختلف مقامات کو ویکسین منتقل کرنے کے لیے 866 کولڈ چین پوائنٹس کا قیام عمل میں لایا جا رہا ہے۔ واضح ہے کہ 16 جنوری سے ملک بھر میں کووڈ ٹیکہ اندازی شروع ہو جائے گی۔ دوسری جانب شہری ہوابازی کے وزیر ہردیپ سنگھ پوری نے بتایا کہ پونے میں واقع سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا سے 10 خصوصی طیاروں کے ذریعے 56.5 لاکھ ویکسین کی خوراک ملک کے مختلف شہروں کو منتقل کرائی جا رہی ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ایئر انڈیا، اسپائس جیٹ، انڈیگو اور گو ایئر طیاروں کے ذریعے دلی، چنئی، وجے واڑہ، گوہاٹی، شیلانگ، احمد آباد، بنگلورو، حیدرآباد، لکھنؤ، چندی گڑھ اور بھوونیشور شہروں کو Z+ زمرے کے تحت ویکسین منتقل کی جا رہی ہے۔ ملک میں 16 جنوری سے کرونا ویکسین کی تقسیم کا عمل شروع ہونے جا رہا ہے، جس کے پیش نظر مرکزی وزارت صحت کے سیکریٹری راجیش بھوشن نے مزید تفصیلات سے واقف کرایا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جلد ہی ملک میں مزید 4 ویکسین دستیاب ہوں گی اور اب کوویشیلڈ اور کو ویکسین تیار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ مرکزی حکومت نے پہلے مرحلے میں جملہ 110 لاکھ کوویشیلڈ ویکسین کی خوراک فراہم کرنے کے لیے سیرم انسٹی ٹیوٹ آف انڈیا سے معاہدہ کیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ کوویشیلڈ ویکسین کی ایک خوراک کی قیمت 200 روپے ہے۔ راجیش بھوشن نے بتایا کہ بھارت بایو ٹیک کی جانب سے 55 لاکھ کو ویکسین کے ڈوز فراہم کیے جا رہے ہیں۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا کہ ایک نئے ہندوستان کی تعمیر کے حصے کے طور پر نوجوانوں کو ایک ذمہ دار شہری بنانے میں قومی تعلیمی پالیسی کافی اہمیت رکھتی ہے۔ انہوں نے کہا کہ نئی تعلیمی پالیسی میں نوجوانوں کے فیصلوں، نظریات اور عقائد پر زور دیا گیا ہے۔ وزیر اعظم دوسرے نیشنل یوتھ پارلیمنٹ فیسٹیول کے اختتامی پروگرام سے ویڈیو کانفرنس کے ذریعے خطاب کر رہے تھے۔ سوامی وویکانندا جینتی کے موقع پر وزیر اعظم نے انہیں خراج عقیدت پیش کیا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ سوامی جی نے اپنی تحریروں اور تعلیمات کے ذریعے نوجوانوں میں قوم پرستی کے جذبے کو پیدا کیا اور آزادی پسند نوجوان ان سے متاثر ہوئے۔ विशेष इसलिए भी हो गया है कि इस बार युवा संसद देश की संसद के सेंट्रल हॉल में हो रही है। ये सेंट्रल हॉल हमारे संविधान के निर्माण का गवाह है। देश के अनेक महान व्यक्तियों ने यहां आजाद भारत के लिए फैसले लिए, भारत के भविष्य के लिए चिंतन किया। साथियों, स्वामी जी ने जो देश और समाज को दिया है, वो समय और स्थान से परे हर पीढ़ी को प्रेरित करने वाला है, रास्ता दिखाने वाला है। سپریم کورٹ نے نئے زرعی قوانین کے انعقاد پر پابندی عائد کر دی ہے۔ عدالت نے واضح کیا ہے کہ یہ حکم اس وقت تک جاری رہے گا جب تک مزید احکامات نہ دیے جائیں۔ سپریم کورٹ نے کہا کہ یہ کمیٹی کاشتکاروں کے خدشات کو دور کرنے کے لیے تشکیل دی جا رہی ہے، جو نئے زرعی قوانین پر فکر مند ہے۔ چیف جسٹس ایس اے بوبڈے کی سربراہی میں بینچ نے زراعت کے نئے قوانین اور کسانوں کے حقوق سے متعلق دائر کردہ درخواستوں کی سماعت کی۔
इसी तरह सुप्रीम कोर्ट ने नए ज़रई क़वानीन के उमूर का मुताला करने के एक कमेटी तश्कील दी है। कमेटी में हरसिमरत मान, प्रमोद जोशी, अशोक गुलाटी, अनिल धनवंत और भूपेंद्र सिंह मान अरकान हैं। वाज़ेह है कि अशोक गुलाटी ने इससे कबल ज़रई अखराजात और कीमतों के कमीशन के चेयरमैन रह चुके हैं। रियासती वज़ीर बल्दी नज़्म KTR ने ग्रेटर हैदराबाद के रहमत नगर के SPR हिल्स में मुफ्त पीने के पानी की फराहमी की स्कीम का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रियासती वज़ीर ने मुकामी मकीनों में ज़ीरो वाटर बिल तकसीम किए। इफ्तिताही प्रोग्राम में रियासती वज़रा महमूद अली, P श्रीनिवास यादव, मल्ला रेड्डी के अलावा रुकन असम्बली M गोपीनाथ, मेयर B राम मोहन और सरकारी चीफ सेक्रेटरी सोमेश कुमार मौजूद थे। इस मौके पर KTR ने कहा कि GHMC इंतखाबात के दौरान चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद के आवाम को मुफ्त पीने का पानी फराहम करने का वादा किया था और KCR का ये वादा आज पूरा हुआ है। उन्होंने बताया कि इस स्कीम के तहत फ़ी ख़ानदान को माहाना 20,000 लीटर पानी मुफ्त फराहम किया जाएगा। KTR के मुताबिक बस्तियों में नलों के मीटर के बगैर मुफ्त पीने के पानी की सरबराही अमल में आएगी। इसी तरह अपार्टमेंट्स में लाजमी तौर पर मीटर्स की तनसीब अमल में लाई जाएगी। KTR ने कहा कि अपार्टमेंट में फ़ी फ्लैट को 20,000 लीटर के लिहाज से 10 फ्लैट्स होने पर अपार्टमेंट के लिए माहाना 2 लाख लीटर मुफ्त पानी फराहम किया जाएगा। अगर 20,000 लीटर से ज़्यादा पानी इस्तेमाल किया जाता है तो पुराने चार्जेस के लिहाज से बिल वसूल किया जाएगा। रियासती हुकूमत कोविड-19 के केसेस में कमी के पेश नज़र स्कूल्स खोलने के इंतजामात कर रही है। हुकूमत की जानिब से 1 फरवरी से स्कूल्स खोलने का फ़ैसला लिया गया है। हुकूमत ने पहले मरहले के तौर पर 9वीं और 10वीं जमात के तलबा के लिए मैनुअल क्लासेस चलाने का फ़ैसला किया है। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर तालीम सबीता इंदिरा रेड्डी ने आला अहदेदारों के साथ एक जायज़ा इजलास मुनक़िद किया और इख्तियार किए जाने वाली एहतियाती इक़दामात पर बातचीत की। वाज़ेह है कि कोरोना वायरस की वजह से गुज़िश्ता साल 2 मार्च से स्कूल्स बंद है। एक तवील वक्फे के बाद रियासत में तालीमी इदारे खोले जा रहे हैं। रियासती वज़ीर अफ़ज़ाइश मवेशियान T श्रीनिवास यादव ने बताया कि रियासत में अभी तक कहीं पर भी बर्ड फ्लू के आसार नज़र नहीं आए हैं। उन्होंने अफवाहों पर तवज्जो न देने और तशवीश में मुब्तला न होने की आवाम से अपील की। रियासती वज़ीर सेहत E राजेंद्र ने बर्ड फ्लू के फैलाव को रोकने के लिए एहतियाती तदाबीर के बारे में गौर ख़ौस करने के लिए आला अहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने बताया कि रियासत में बर्ड फ्लू आने के कोई इम्कानात नहीं है। इसी तरह सरहदी अजला में अहदेदारों को चौकस कर दिया गया है। इस मौके पर श्रीनिवास यादव ने कहा कि अफवाहों के ऊपर बर्ड फ्लू और अंडी मुर्गी खाने से होता है। रियासत के मुख्तलिफ अजला में हर साल स्कूल इनोवेशन चैलेंज प्रोग्राम मुनक़िद किया जाता है ताकि तलबा में छुपी सलाहियतों को बाहर लाया जा सके। वाज़ेह है कि साल 2020 में मुनक़दा मुकाबलों में नलगुंडा की तालिबात बशीरा, ज़ैनब और शमीम टीम की जानिब से तैयार करदा हाइड्रोलिक लिफ्टिंग और रोटेटिंग व्हील चेयर का इंतखाब किया गया। पेश है एक रिपोर्ट। रियासती हुकूमत के महकमे तालीमात की जानिब से यूनिसेफ और इनकलाब इदारे के इश्तराक से रियासत भर में स्कूल्स इनोवेशन चैलेंज 2020 का इनेकाद अमल में लाया गया। मुख्तलिफ स्कूल्स के तलबा और तालिबात ने इन मुकाबलों में अपनी साइंसी तजुर्बात व नज़रियात का मुजाहरा किया। इसी तरह जारिया साल कोरोना के पेश नज़र ऑनलाइन प्रोजेक्ट्स को कबूल किया गया। रियासती सतह पर 33 अजला के स्कूल से 8,750 टीमों की 23,800 तलबा व तालिबात ने 7,093 प्रोजेक्ट्स रवाना किए थे। बाद में इनमें से 25 प्रोजेक्ट्स को उम्दा प्रोजेक्ट के तौर पर मुंतखब किया गया। इस मुजाहरे में नलगुंडा से ताल्लुक़ रखने वाली तालिबात बशीरा, ज़ैनब और शमीम टीम की जानिब से तैयार करदा हाइड्रोलिक लिफ्टिंग और रोटेटिंग व्हील चेयर का इंतखाब किया गया। वाज़ेह है कि रियासती वज़ीर KTR ने भी इन तालिबात के उम्दा मुजाहरे की सताइश की। हमारा प्रोजेक्ट है हाइड्रोलिक व्हील चेयर। ये सबको बहुत यूज़ होता है, बूढ़े लोगों को एंड हैंडीकैप्स को, प्रेग्नेंट लेडीज़ को, सबको यूज़ होता है। इसलिए व्हील चेयर से यूज़ क्या है बोल तो एक के ऊपर डिपेंड नहीं हो सकते लोग। सो ये बहुत ईजी से यूज़ कर सकते हैं, बहुत पैसा भी नहीं हो सकता और ये बहुत अच्छा यूज़ रहता है, एक पे डिपेंड ना हो सकते। एंड ये व्हील चेयर को हम लोग बनाने के लिए बहुत मुश्किल हुआ था एंड हमारे टीचर्स भी बहुत सपोर्ट करे थे हम लोगों को। हमारे टीचर्स को भी बहुत थैंक यू एंड ये चांस दिया उसको हम सबको థ్యాంక్ యూ। ఈ వీల్ చైర్ తయారు చేసే ఐడియా ఎలా వచ్చింది? మా ఆయనకి 4 ఏళ్ల క్రితం పక్షవాతం వచ్చింది సార్. ఆయన అటు ఇటు నడవలేకపోయేవాళ్ళు. ఇంకా అది చూసి ఇంకా అది
ఇంట్లోనే ఉండి ఆయనకి సేవలు చేసుకుంటూ 1 ఇయర్ క్లాసులు మిస్ అయిపోయింది. అది చూసి దానికి ఇలా ఉంటే ఎలా అని చెప్పి వాళ్ళ నాన్నగారికి ఏదన్నా చేయాలి, ఇలా నాలాగా ఎవరు ఇబ్బంది పడకూడదు అని చెప్పి ఐడియా వచ్చింది. వీళ్ళ టీచర్ బషీరాకి ఫోన్ చేసి చెప్పిందనమాట ఇలా ఛాలెంజ్. नाज़रीन, आज के उर्दू खबरनामा में फ़िलहाल इतना ही। आप देखिए सुर्खियाँ और मुझे दीजिए इजाज़त। शब बख़ैर। अब आप दूरदर्शन यादगिरी की खबरें सोशल मीडिया पर भी देख सकते हैं। यूट्यूब पर DD न्यूज़ तेलंगाना, ट्विटर पर DD न्यूज़ तेलंगाना @DD यादगिरी न्यूज़ और फेसबुक पर DD न्यूज़ तेलंगाना का मुशाहिदा किया जा सकता है। हैदराबाद पहुंचा कोविशील्ड और कोवैक्सीन टीका। पहले मरहले में 6,50,000 तकसीम की जाएगी खुराक। कोविड केसों की तादाद में कमी, मरकजी वजारत सेहत के सेक्रेटरी राजेश भूषण का बयान। आने वाले दिनों में मजीद 4 वैक्सीन आने की दिलाई यकीन दहानी। नए हिंदुस्तान की तामीर के लिए आगे आने नौजवानों से वज़ीर आज़म की अपील। नई तालीमी पॉलिसी नौजवानों की उमंग में साबित होगी मददगार। और किसानों के मसाइल का जायजा लेने सुप्रीम कोर्ट ने तश्कील दी कमेटी। रिपोर्ट आने तक ज़राई क़वानीन पर अदालत उज़्मा ने लगाई रोक।